Hey guys, welcome back to the channel. In today's video, we are going to answer why most of the gamers use iPhone. So let's compare Snapdragon 865 with Apple A13. Apple A13 सितंबर 2019 में लॉन्च हुआ था और Snapdragon 865 दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था. Apple A13 was 50% faster than 855. So yes, अगर 855 से 50% faster था Apple A13 Bionic. And with the launch of Snapdragon 865, Qualcomm ने ये गैप 25% से कम कर दिया. Means Qualcomm Snapdragon 865 was 25% faster than Snapdragon 855. तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो है सिंगल कोर परफॉर्मेंस की. When it comes to multi-core score, both are neck to neck. So let's compare the Geek benchmark. Apple A13 is 43% faster than Snapdragon 865 in single core. Multi-core score में almost both are neck to neck. Apple A13 is but slightly 1% faster than a Snapdragon 865. और अगर हम Antutu benchmarks की बात करें तो Snapdragon 865 is 16% more score than Apple A13 Bionic chip. तो पहली चीज़ की बात हम करेंगे that is CPU performance. हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ CPU performance. So CPU performance में definitely Apple A13 Bionic chip is better. लेट्स कम टू GPU. अगर हम बात करें एप्पल A13 Bionic चिप के GPU की तो यस, एप्पल ने बहुत ही अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ GPU परफॉर्मेंस. सो यस, GPU परफॉर्मेंस दोनों के ही बेस्ट है, लेकिन स्टिल एप्पल A13 इज़ बेटर देन स्नैपड्रैगन 865. एप्पल A13 में एप्पल A12 से 20% मोर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा इन GPU परफॉर्मेंस और 40% लेस ड्राइंग पावर. और एप्पल A13 में मेटल इंजन आता है, वो जो GPU परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करने में हेल्प करता है और दिस हेल्प्स डेवलपर हैंडल द इंटेंसिव टास्क, हेवी टास्क इजीली. नाउ वी विल टॉक अबाउट Snapdragon 865 GPU. सो Snapdragon 865 में Adreno 650 GPU है और Adreno 650 GPU में 25% परफॉर्मेंस बूस्ट है in terms of GPU and it draws 35% less power when compared to previous generation Qualcomm chips. अगर Adreno 650 GPU की बात करें तो it supports 144 Hz डिस्प्ले. सो येस, अगर गेमिंग के लिए अगर हाई रिफ्रेश रेट की जो हाई FPS के जो गेम्स है वो आप इजीली खेल पाओगे इन Qualcomm Snapdragon 865. सो अगर हम कंपेयर करें Snapdragon 865 और Apple A13 की GPU की, सो डेफिनेटली Apple A13 इज़ better. Yes, Qualcomm Snapdragon 865 is catching up with Apple A13, but still it needs some improvement. अगर हम इन दो स्मार्टफोन्स के GFX कंपेयर करें, so अगर ये है चार्ट, so through this chart you will get to know a rough idea about how fast is Apple A13 Bionic chip. Snapdragon 855 में आपको around 71 points मिल जाते हैं and with 25% improved Snapdragon 865 आपको ये स्कोर है अराउंड 90 मिल जाता है. while the Apple A13 stands tall, it goes to 120. So these were the quick GFX score benchmarks of these two chipsets. नेक्स्ट चीज़ की हम बात करेंगे that is AI and machine learning. So definitely here the Qualcomm Snapdragon 865 goes way ahead than Apple A13 Bionic chip. Apple A13 Bionic chip में आप 1 ट्रिलियन AI ऑपरेशंस आप कर पाओगे इन पर सेकेंड. और while on the other hand Qualcomm Snapdragon 865 में आप 15 ट्रिलियन AI ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे विद इन 1 सेकेंड. तो येस, Apple A13 is 15 times less than Qualcomm Snapdragon 865 in terms of AI and machine learning performance. And the other thing is modem. Qualcomm Snapdragon 865 एक 5G चिपसेट है and Apple A13 is 4G चिपसेट. Apple Intel के मॉडेम्स यूज़ करता था, लेकिन now Intel is no longer going to provide Apple its modem. So yes, Apple को अभी जो नेक्स्ट जनरेशन के Apple Bionic चिप्स आएंगे तो नो डाउट उनको Qualcomm से मॉडेम्स लेने पड़ेंगे. और जो X55 मॉडेम है Snapdragon 865 में, it is far better than any modem available in market right now. So let's come to conclusion.
whether Snapdragon 865 is better or Apple A13 Bionic chip is better. So definitely अगर CPU and GPU की बात करें तो Apple A13 Bionic chip is ahead of Snapdragon 865, while on the other hand अगर AI machine learning की बात करें और modems की बात करें so definitely 865 is better than A13 in that area. सो अगर एक गेमर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें सो डेफिनेटली एक मोबाइल में एक अच्छा CPU एंड GPU होना बहुत ही ज़रूरी है एंड येस दैट्स इन द एप्पल। तो इसीलिए काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स और काफ़ी गेमर्स एप्पल A13 Bionic चिप मतलब आईफोन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कॉम्पिटिटिव एंड हैवी गेमिंग। एंड अदर मेन थिंग इस एप्पल का एक इकोसिस्टम बन गया है, एप्पल का ही फ़ोन, एप्पल के ही प्रोसेसर्स, एप्पल का ही सॉफ्टवेयर्स। सो येस डेफिनेटली सो जो ये इंटीग्रेशन है एप्पल बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। सो येस द फ्रेम ड्रॉप्स एंड ऑल इज़ वेरी मिनिमल इन आईफोन्स। सो येस सो ये जो गेमर को है जब भी मतलब एंगेजमेंट मतलब बहुत सारे सब टफ सिचुएशन है जहाँ पे ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो येस एप्पल A13 Bionic चिप जो है वो ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता है। सो नो डाउट Qualcomm A65 भी बहुत ही अच्छे प्रोसेसर है इन और वो जो भी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन द इंटीग्रेशन इज विच मेक्स एप्पल आईफोन्स बेटर व्हेन कम्स टू गेमिंग परफॉर्मेंस। सो दैट्स व्हाई मेनी गेमर्स यूज एप्पल आईफोन्स फॉर हैवी कॉम्पिटिटिव गेमिंग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।